आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कल ही आया है और ये रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि इस रिजल्ट की फाइंडिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस में पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टेड हूं और इट हैड बीन अ गुड रैली। सो आई थिंक दैट एनी सीरियस इन्वेस्टर शुड हैव अ लुक एट बजाज फाइनेंस लिमिटेड बिकॉज इट इज अ क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाओगे कि why I am saying so, why this is a quality as well as portfolio stock, as well as you would know about how the quarter has been। साथ ही आप बजाज फाइनेंस की कोर स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत तक में। ड्यूरिंग द वीडियो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट लर्निंग जो मैंने पिछले 1 साल में सीखी है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, which is actually the key to create wealth in the long term and particularly in the stocks like Bajaj Finance. Friends, before moving on to the business analysis of this company, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज लाइक दिस वीडियो as well as share this video to maximum people because I put a lot of effort and make up these videos. I put all of my knowledge which I have earned through more than 10-12 years of experience, and my investing experience also comes through my videos. So please share it with larger audience so that the channel can grow and this YouTube algorithm help me grow this channel. Let's move forward with the story today. मैंने बजाज फाइनेंस सबसे पहले खरीदा था 26 अगस्त 2019 को at the price of 3300 and you know what happened after that। दोस्तों आपको याद होगा आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले मार्च 2020 जब पूरा मार्केट पूरी तरीके से रेड में था एंड बजाज फाइनेंस का स्टॉक गिर रहा था एक डेड मीट की तरह, and at that time I have loaded little bit of it at the price of 2250, but the icing on the cake came little later। Market started reviving but Bajaj Finance did not, क्योंकि Bajaj Finance के बारे में काफी rumors फैल रहे थे and that was the time when Bajaj Finance was available at dirt cheap price of 1900। Can you imagine, जो स्टॉक आज के डेट में is available at 5000 उस समय 1900 पे अवेलेबल था and I bought more। I bought just 10 stock and just look at the return it has given me। I have total made 80,000 rupees out of this stock so far, out of which more than 30,000 had just come from the investment of barely 19,000। This is the investment learning I would like to highlight you, that it is not just the right stock but the right timing is equally important, and right timing just does not come from watching television or somebody will come in your dream and tell you. It comes from the conviction. If you have deep conviction in the business of the stock, then when the prices crash you have the guts to buy more, and that results into fruitful returns, and that has been the case with Bajaj Finance। So cut the long story short, let's move forward with Bajaj Finance stock analysis। As we know, Bajaj Finance is an NBFC and BFL had been in the business for more than 2 decades। 1 decade की जर्नी के बारे में देखते हैं कैसा इस कंपनी ने बिजनेस किया है। इस कंपनी ने अपने AUM को ग्रो किया है by more than 31% for past 10 years, and from barely 13,000 के AUM से this company is now having an AUM of 1,52,000 crores। Most interesting part of this decadal study is net interest margin। They have at the same time grown the NIM with the same pace of 32%, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी इक्वली 30% से ग्रो कर रहा है। So a 10-year story with 30% growth in AUM, 30% growth in net interest income and 30% growth in bottom line। So top line, middle line, which is you can compare with EBITDA, operating profit and bottom line, all three are growing at 30%, and that gives the valuation to this stock। Important होता है, अगर आपने हम साधन के पुराने वीडियो देखे हैं जैसे जहां पे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को डीपली एनालाइज किया है, एचडीएफसी बैंक को डाइसेक्ट किया है, ये दोनों वीडियो भी बहुत ही अच्छे सोर्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल ऑफ अ बैंक क्या है। देन यू अंडरस्टैंड दैट what I look for in a banking company, and that parameter is net interest margin, NIM। NIM is basically total interest income minus total interest expense divided by total assets। ये किसी भी NBFC की प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है।
तो अगर मैं NIM कैलकुलेट करूं, बिकॉज कुछ कंपनियां NIM बताती हैं, कुछ कंपनियां NIM नहीं बताती हैं, एंड बजाज फाइनेंस डजंट टेल यू अबाउट योर NIM. सो मैंने NIM को कैलकुलेट किया एंड आई कैलकुलेटेड दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला को बताया जो मैंने. तो सबसे पहले मैंने NIM कैलकुलेट किया, फिर AUM, फिर ये कैलकुलेशन आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि NIM ओवर लास्ट 4 years हैज बीन quite stable at roughly 12%. FY21 में ये 13 से घट के 12% पे आ गया है, but that is because of the aberration, because of the pandemic and all. 1% का reduction is not a major reduction. So NIM front पे this company is doing pretty well. अगर मैं Q4 परफॉर्मेंस की बात करूं तो Q4 का NIM जो है वो भी 12% रहा है, which shows that इन्होंने more or less एक stable NIM पे ऑपरेट किया है. So on this parameter, Bajaj Finance is doing pretty okay. So overall, अगर Q4 और FY21 की स्टोरी को समराइज करें तो AUM और NII की ग्रोथ ने बजाज फाइनेंस के NIM को सस्टेन करने में जो कंट्रीब्यूट किया है. So this now let's look at the Q4 performance quite close. के बारे में AUM में 4% का ग्रोथ हुआ है. Let's first understand that ये AUM कितना है और AUM में कहाँ पे ग्रोथ आई. To the closer, let's have a closer look at the AUM of the company. बजाज फाइनेंस अपने AUM का मैक्सिमम परसेंटेज है मॉर्गेज से अर्न करते हैं. मॉर्गेज से वो अर्न करती है रफली 32%. ये जो मॉर्गेज का कंट्रीब्यूशन है ये पिछले 2 सालों में ही काफी बढ़ा है. इसके पहले जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो आ रहा था पर्सनल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स. FY21 में इसका कंट्रीब्यूशन 28% रहा है एंड ये वो बिजनेस है जिसके थ्रू ज्यादातर क्लाइंट बजाज फाइनेंस को जानते हैं. जैसे भी आप कहीं क्रोमा स्टोर्स में जाते हैं, रिलायंस स्टोर्स में जाते हैं व्हीकल, तो वहां पे आपको जो बजाज फाइनेंस जो भी थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू अदर इजी फाइनेंसिंग की स्कीम्स देती है, दैट कम्स अंडर पर्सनल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेड अर्नर फॉर दिस कंपनी. तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो सिक्योरिटी लेंडिंग बिजनेस यानी लोन अगेंस्ट शेयर्स. ऑटो फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन 8% है. रूरल फाइनेंसिंग गिव्स 8%, also give 8%, and SME लोन और वेंडर फाइनेंसिंग कंट्रीब्यूट 16%. वेंडर फाइनेंसिंग यानी कि बजाज ऑटो के जो वेंडर्स होते हैं उनको एक कमर्शियल बेसिस पे लेंडिंग करना, दैट इज बजाज फाइनेंस कोर ऑपरेशन. साथ ही वो कुछ SME लोन भी देते हैं, तो दैट कंट्रीब्यूट 16%. सो overall the growth is coming from consumer B2C business which is 20% से ग्रो कर रहा है, और mortgage business. Mortgage is very secure business which is under a relatively new company called Bajaj Home Finance Limited. तो इस क्वार्टर की हाईलाइट की बात करें तो इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट किया है अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस एक्सेप्ट मॉर्गेज. मॉर्गेज में होम लोन के रेट काफी कम हो गए थे. ICICI बैंक, HDFC बैंक, एवरीबॉडी हैज रिड्यूस्ड देयर होम लोन रेट, सो वहां पे बजाज फाइनेंस को मार्जिन प्रेशर आ रहा है. बट एट द सेम टाइम द कंपनी ने अपने कॉस्ट ऑफ फंड को रिड्यूस कर लिया है to 7.4% in last quarter against 8.4% in Q4 of last year. So अगर कंपनी सस्ते रेट पे लोन बोरो कर रही है और ये बोरोइंग जो कर इन्होंने कुछ हाई कॉस्ट लोन जो बैंक से लिए हुए थे उसे प्रीपे भी कर दिया है. सो दैट्स हाउ देयर फंडिंग कॉस्ट लुक्स क्वाइट स्टेबल. मैं कंज्यूमर कस्टमर फ्रंट पे बात करूं तो इस कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो है इसकी कस्टमर फ्रेंचाइज. और एज ऑन 31st March 2021 इनकी कस्टमर फ्रेंचाइज हैज ग्रोन टू 4.9 करोड़, रफली 5 करोड़ का इनका कस्टमर बेस हो गया है अगेंस्ट 4.3 करोड़ इन March 31st 2020. यानी एक साल में काफी अच्छा ग्रोथ है. रफली 60 लाख कस्टमर उन्होंने ऐड किए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. और इस कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें रफली 300 करोड़ का रिवर्सल हुआ है इन Q4. यानी कि इन्होंने प्रोविजन कर रखा था कि पैंडेमिक के कारण ये पैसे नहीं आएंगे, बट सम मनी हैज फ्लोन बैक, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन. ये रिवर्सल सबसे ज्यादा था Q3 में, रफली 450 करोड़. दिस क्वार्टर आल्सो 300 करोड़ लुक्स डिसेंट अमाउंट. But apart from the NIM, other factor which one should have a closer look is net NPA. So इस कंपनी की नेट NPA अक्रॉस द बिजनेस वर्टिकल मैंने आपके सामने दिखा रखा है. आप देख सकते हैं कि जो NPA कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो जनरली ऑटो फाइनेंस बिजनेस में हाई है, और ओवर 3 years this has grown from 3% to 4.8%. And at the same time we can पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि ऑटो फाइनेंस बिजनेस हैज बीन रिड्यूसिंग ईयर ऑन ईयर,
रफली ये 8% हो गया है ओवरऑल बिजनेस का। सो जहाँ पे एनपीए नेट एनपीए कंट्रोल नहीं हो रहा है, दैट सेगमेंट इज नॉट ग्रोइंग दैट मच। उनको कॉन्शियसली ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो ओवरऑल टोटल एनपीए इस कंपनी का 0.75% रहा है इस साल। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो ये नंबर बेटर है। 1.22% का नेट एनपीए था 31 दिसंबर 2020 में। हालांकि ये नंबर पिछले साल के 31 मार्च 2020 के 0.65 से ज्यादा है, बट ओवरऑल दिस नंबर लुक्स नॉट दैट बैड। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम को मेजर करने के लिए हम ऑपेक्स टू एनआईआई एक रेशियो होता है जिसे ये कंपनी डिस्क्लोज करती है, वो देखते हैं। वो नंबर पिछले क्वार्टर में 34.5% हो गया है, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर से काफी ज्यादा है। 31% था पिछले साल। सो रफली 4% का जो जंप है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द अर्निंग्स नेगेटिवली। सो लेट्स डिग डीपर कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा होने का रीजन ये है कि इनके ऑपेक्स जो है वो बढ़ गए हैं। ऑपेक्स बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट मेन रीजन है रिकवरी कमीशन जो था, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनको रिकवर करने के लिए जो एजेंट हायर करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, उन्हें वो कुछ कमीशन देते हैं एंड दैट कमीशन हैज ग्रोन टू रफली 140 करोड़। साथ ही एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट भी 151 करोड़ से बढ़ गया है पिछले क्वार्टर। सो इन दो फ्रंट पे कॉस्ट के बढ़ने से कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज कम अंडर प्रेशर। एट द सेम टाइम एक तीसरा रीजन है जो कि विच इज अ स्लाइटली मैक्रो रीजन, और वो ये है कि कंपनी हैज स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ एंड ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्होंने काफी कैपेक्स भी किया हुआ है और ओपेक्स इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। सो ये समझते हैं क्या ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, क्या बजाज फाइनेंस विल बी अ टोटली न्यू एंटिटी इन गोइंग फॉरवर्ड। तो लेट मी टेल यू ये क्या कर रहे हैं कि दे हैव लॉन्च्ड अ 3-in-1 फाइनेंशियल सर्विसेज और दे आर गोइंग ओमनी चैनल। तो कंपनी के पास जो रफली 5 करोड़ कस्टमर बेस है, उसे वो 3-in-1 फाइनेंशियल सर्विस देने की बात कर रहे हैं इन अ सीमलेस मैनर by creating an omni-channel framework. This model will enable its customer to move between offline to online. और इसके लिए इनके पास एक ऐप है which is called Expedia. इस ऐप को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं to the next level और which will work as a super app for financing need. And इसका जो लॉन्च है वो Q2 of FY22 में होने वाला है. So we might have to still wait during the time OPEX to cost to income ratio might be slightly under pressure, but over a long period it may bear good fruit. तो इस पैरामीटर पे हम इसे वॉच करते रहेंगे going forward. If you're watching this video, then let me tell you that I am organizing a 3-day stock market workshop. मई तक 3 दिनों के इस 1 घंटे के वेबिनार में आप जान पाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर इश्यू क्यों होता है, ये आईपीओ क्या होता है, और साथ ही आपने जितने भी टर्म्स आज तक सुन रखे हैं, ETF, डिफेंसिव स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, ये सारी चीजें मैं डिकोड करने वाला हूं ओवर दिस 3 days. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट योर डाउट्स क्लियर। बहुत सारे लोग जो मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पे मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकूंगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट योर डाउट्स क्लियर and to set your framework right. Because thanks for watching. धन्यवाद।